You have to add given fractions. And how to add given fraction? As the fractions given here are, they are like fraction, means their denominator are same. Correct? So in answer also denominator will remain same. Only numerator you have to add numerator. Like in question number C, 3 by 24 plus 8 by 24. So your answer is 3 plus 8 whole upon 24 is equals to. Now 3 plus 8 is 3 plus 8 कितना होता है? I am doing here on board. You can change the pen and you can screen change करके आप देख सकते हो. Question number C. 3 by 24 plus 8 by 24. Answer is 3 plus 8 by 24 is equals to 8 plus 3 is 11. 11 by 24. This is the answer. Okay. C का आंसर क्या है? 11 by 24. Answer of D. 6 by 10 plus 3 by 10. 6 by 10 plus 3 by 10. Answer is 6 plus 3 whole upon 10. 6 plus 3 is 9. Answer is 9 by 10. Check your answers, those who have completed. Check your answers whether your answer is correct or not. 3 by 9. Next question is 3 by 9 plus 4 by 9. So 3 plus 4 whole upon 9 is equals to 3 plus 4 is 7. 7 by 9. Answer is 7 by 9. Next question. Next question, question number F. 5 by 12 plus 6 by 12 plus 6 by 12. डिनोमिनेटर कैसे ऐड करते हैं? डिनोमिनेटर रिमेन सेम, दोनों में डिनोमिनेटर 12 है, सो वी विल कंसीडर 12 एक ही बार 12 लिखेंगे प्लस न्यूमरेटर 5 plus 6. 5 plus 6 is 11. 11 by 12. Answer of F is 11 by 12. Moving to G, question number G. 9 by 14 plus 2 by 14. 9 by 14 plus 2 by 14. 14 we will take common plus 9 plus 2. 9 plus 2 is 11. 11 by 14 is answer of G. Answer of H. Question is 1 by 6 plus 3 by 6. So 6 we will take denominator common. In numerator we will write 1 plus 3. 1 plus 3 is 4. 4 by 6. 4 by 6 can we reduce 4 by 6? क्वेश्चन में बोला है कि रिड्यूस आंसर टू लोवेस्ट टर्म. अगर आंसर जो हमारा आ रहा है अगर वो लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस हो सकता है देन यू हैव टू रिड्यूस. सो 4 by 6 हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग. कौन किसके टेबल में आता है? 4 और 6 दोनों 2 के टेबल में. सो वी विल डिवाइड 4 and 6 by 2. So 2 2s are 4 and 2 3s are 6. So your answer is 2 by 3. Answer of H is 2 by 3. Answer of H is 2 by 3. Everyone check your answer. Moving to question number 2. Question number 2 is after painting her room, Marian had 3 by 8 can of burgundy and 4 by 8 can of
टॉप पेंट लेफ्ट, मतलब 2 कलर के पेंट शी हैड, उसके पास बच गए। हाउ मच पेंट इन ऑल डिड मारियन हैव लेफ्ट ओवर, कितना पेंट उसके पास बचा है। तो उसे उसके पास 2 कलर के पेंट बचे हैं, है ना। सो कैसे पता चलेगा कि टोटल पेंट कितना बचा है, कितना लेफ्ट ओवर है पेंट, बाय एडिंग बोथ दिस टू पेंट्स, फ्रैक्शन ऑफ दिस टू पेंट्स। सो क्वेश्चन नंबर 2, स्कैन ऑफ burgundy paint don't write can of, right, but leftover burgundy paint, leftover burgundy paint is equals to, what is the fraction, 3/8, and leftover top paint is 4/8. 4/8. So how much paint in all left? Paint left in all, paint left in all is equals to 3/8 plus 4/8. So your answer is 3 plus 4 is 7. Answer is 7/8. Leftover paint is 7/8. ठीक है? This is answer of second. Yes, correct, Bhavya. 7/8 is correct answer. What I am writing on board you can see by changing the screen. Okay, so where you have done mistake, आपको समझ में आ गया काव्या कहाँ पे mistake है? Yes, काव्या। मैम मुझे ये समझ नहीं आया कि H में डिवीजन कैसे होगा। फ्रैक्शन को रिड्यूस कैसे करते हैं? मैम सारे क्वेश्चंस में हाँ सिर्फ प्लस का ही हुआ है। हाँ, बट क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर आंसर रिड्यूस हो सकता है, अगर फ्रैक्शन रिड्यूस हो सकता है तो हमें उसे रिड्यूस करना है। और रिड्यूस कैसे करते हैं हम? बाय टेकिंग एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालते हैं ना, फिर जो एचसीएफ आता है उससे दोनों नंबर्स को डिवाइड करते हैं। करेक्ट? एचसीएफ ऑफ 4 यस मैम। is 2. Yes, Dakshita, what happened? हाँ, Ma'am, your board is not clear. Ma'am, board is not clear. And how many of you are facing this problem? Yes, Molly? मैम जो डी वाला आंसर है उसमें तो 10/8 आएगा, तो 7/8 कैसे? कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2? यस मैम। नहीं, yes है
मोनी तो एकदम मस्त राउंड राउंड बनाती है, ऐसे गंदा बनाई तो मैं ही बनाऊंगी तुमको। मैम क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी। बी। मैम 3/8 प्लस 2/8 इज इक्वल टू 5/8। मैम उसमें तो आंसर 10/8 आना चाहिए। Wait a minute. Which question you are saying? Question number B. 3/8 यस plus 2/8. यस मैम। तो 3 plus 2 5 होता है कि 10 ओनली? यस मैम। 3 plus 2 5 होता है कि 10 होता है? नीचे टेस्ट करो, नीचे करके आप न्यूमरेटर मैम को टाइम के को हर चीज को क्या करना है, हमको टेस्ट करना है, ध्यान से करना इंपॉर्टेंट है। वेरी हाँ, नॉट। सर्कल और वन दे दी उसको। प्रॉब्लम है। यस काशवी। मैम आपकी आवाज अच्छे से नहीं। सो जिनका नेटवर्क, जहाँ पे नेटवर्क ठीक नहीं होगा वहाँ पे आवाज ठीक नहीं आएगी। व्हाट हैपेंड गौरव? ठीक आ रही है। आपने क्यों आंसर किया है? हाँ, मैम कोई डाउट नहीं है? देन व्हाई आर यू रेजिंग योर हैंड? लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. Question is, at the end of the class pizza party, at the end of the class pizza party, Frank tried to determine how much pizza was left. Each pizza originally had 8 slices. मतलब हर पिज्जा के कितने स्लाइस थे? 8 स्लाइस. So सब में डिनोमिनेटर कितना रहेगा? 8. टोटल डिनोमिनेटर इज, सब में डिनोमिनेटर क्या रहेगा? 8. There was one slice of pepperoni left. Pepperoni पिज्जा का कितना स्लाइस बचा था? 1. So फ्रैक्शन में क्या होगा? लेफ्ट. फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? पेपरियोनी लेफ्ट इज इक्वल्स टू 1/8 बिकॉज टोटल कितने पार्ट्स है? 8 पार्ट है. 8 में से कितना पार्ट बचा है? 8 पार्ट बचा है. सो वी विल राइट 1/8 फॉर पेपरियोनी इन फ्रैक्शन. नाउ स्लाइस ऑफ हवाईयन पिज्जा, 2 slices of Hawaiian pizza is left. So leftover fraction of Hawaiian pizza is 2/8 and leftover of supreme pizza is 3/8 because out of 8 slice 3 slice बची है. So उसका fraction क्या होगा? 3/8 in fraction form. How much pizza is left? Total कितना part बचा है? That you have to find. So how you will find? By adding all these 3 fractions. समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? आई एम एक्सप्लेनिंग योर क्वेश्चन नंबर 3. टोटल स्लाइसेस ऑफ पिज्जा, कितना स्लाइस है टोटल? 8 स्लाइस. ठीक है. पेपरियोनी पिज्जा है, कितना बचा पेपरियोनी पिज्जा? इन फ्रैक्शन लेफ्ट इज इक्वल्स टू
क्वेश्चन में दिया कितने स्लाइस बचे हैं, 1 स्लाइस. सो इन फ्रैक्शन व्हाट इट विल बी